everyone. At the center, I had two bosses. One is Mr. M.S. Irani and one is Madam Janice. Arey Baba. You've got 1 minute to go. Jimmy Khan, are you there? He's on New York time. कितना होगा New York में? 8:30 in the morning. Okay. Time to start. Avatar Meher Baba Ki Jai. Janice, do the prayer, please. Avatar Meher Baba Ki Jai. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba Ki Jai. Avatar Meher Baba Ki Jai. Avatar Meher Baba Ki Jai. Jai Baba, everybody. Welcome to our Thursday evening program. Before we start off, I'd like to call upon our Lord Meher Baba to please come and join us during this meeting and take over the entire proceedings of this program. Because it is only you and you alone that really exists. Thank you, Baba. Today we are expecting Khushi to join us in. She has come in yet. Okay. Khushi, Jai Baba. Jai Baba. Can you hear me? Yes, loud and clear. Great. Baba ka timing dekho, exactly on the time you came on. Yeah. Okay. Before you start, Janice wants to sing something, Baba. So let her sing something. Yeah, go ahead, Janice. Thank you, Sam Uncle. This was unexpected. I'll sing Baba's Dun. Dun. Oh, beloved, I have come to bow down to the Ancient One. Accept my heart, accept my soul. I bow before your love divine. Meher, Meher. Everybody. Let your love song fill the air. Meher, Meher. My heart belongs to you, Meher. My heart belongs to you, Meher. My heart belongs to you, Meher. Avatar Meher Baba Ki Jai. This is called cheating and taking shortcuts. But it was done from the heart, and I think Baba liked it. Okay, Jimmy Khan, are you there?
Okay. Cherry, would you like to say something? Jai Baba, uncle. That's it. बस इतना ही बोल दिया. That's all. That's all. Jai Baba. Everything covered. Shabash. You are in the wrong place here. You should have been in the diplomatic corps. Nahi. Oh, okay. Uh, Today we have with us a young lady, Khushi Khandale. She had been here once before, but she couldn't finish off all that she had to say. So, with Baba's grace, we brought her in again. And we'd like her to tell us something about Anna Khandale, if she can, or whatever else she wants to talk about. Entirely up to her. Go ahead, Khushi, all yours. Thank you so much. Jai Baba, everyone. I hope I'm loud and clear to all of you. Absolutely, absolutely. Great, great. Perform- So, Khushi, you are into performing arts, no? yes, I'm into theater. I do plays. So why don't you participate in a center's plays also? I would love to. I really wanted to, but then I thought ki you all start the rehearsal since like from some March, April or something. I heard ऐसा कुछ किसी ने मुझे बताया था. Then I thought it's like a very lengthy process of what. Then I did not like connect to you about it. Anyway, next time जब भी हमारा होगा, अभी तो कुछ नहीं है फिलहाल. There's nothing in the offing, but if at all there is something, we'll definitely want you to come on board. Please, please, please let me know. Please, I'd love to. Okay. Yes. चलो अभी start कीजिए. Yes. So hello everyone, Jai Meher Baba. If at all you don't know me, let me just tell something about me. Is like my family stays right now in Mehrabad. I was in Mehrabad for like great 7 years, like the most crucial 7 years of my life. And so we all shifted to Mehrabad in 2012. I was there for 7 years, and then I came to Bombay for my studies and work. When I came here in Mumbai, it was like a change, like a complete change from a small place like Mehrabad, which is an universal place again, where you meet all kind of people, and then coming to Bombay, where people don't know from where you are. It was like a very very weird, but a very necessary change, I would say. When I came here in a city, I was very lost. I still feel I'm lost because I find that there are a lot of distractions in the city of Mumbai. आप बहुत जल्दी भटक जाते हो, and then when you have to get back to Baba, you really need to like focus. One thing is I attended Sevas 2022 का, और अभी 23 का भी मैंने attend किया, and there was a change in me. Like पहला जो Sevas था वो तो obviously was really special to me. The second Sevas, I was looking for something. I came with the mindset कि मुझे कुछ चाहिए, and I was not able to find it till the end of day, but I found it. So I'll tell you how that went on. About Baba and me, it has always been a very alag connection. I have always treated him as my father. मुझे बिल्कुल वैल्यू नहीं थी उनकी जब तक मैं यहाँ सिटी में नहीं आई, क्योंकि मैं मेहराबाद में थी. मुझे लगता था अरे यही पे बाबा, रोज समाधि जाना, दर्शन करना है. Like you every day used to get the peace.
But when I came to Bombay, I realized no, something is like some part of me is still there. आधी आई हूँ मैं, पूरी नहीं आई हूँ. Mentally I was there, physically I was here. So now I have actually started this habit कि मैं सुबह जब भी उठती हूँ, I have college in the morning. So when I go to college, I listen to Meher Chalisa. One thing I would really like to tell all of you कि I used to go to center in Akola when I was in Akola. I'm born in Akola. It's my hometown. It's near Nagpur, Amravati, if anyone knows. तो वहाँ पे सेंटर में रोज बिफोर द प्रेयर माई विश पढ़ी जाती थी. बाबा की जो माई विशेस है वो सारी पढ़ी जाती थी. तो जब इस बार माई विश को लेके साइरस कम्भाटा अंकल ने हमें एक सेशन दिया, मतलब उन्होंने हमें बताई चीजें अबाउट माई विशेस. आई वाज लाइक ओ वाओ, दिस इज सो नाइस, बिकॉज ये तो मैंने बचपन में बहुत बार सुना है और मुझे ऑलमोस्ट सारे माई विशेस लर्न है. But when on the very last day of the Savas, everyone was singing Meher Chalisa, I knew nothing. I had to go to Google and search ki Meher Chalisa, और मैं देख के I was singing along with them. तो मैंने बोला यार why this happened with me? I mean, मुझे पता है कि Meher Chalisa exist और मुझे आती क्यों नहीं है. It's a very beautiful composition. So started listening to Meher Chalisa and I feel like it has some power. I will genuinely recommend all of you to go and listen to it very carefully. Listen like thrice a day, I would say, और understand कि क्या है उसमें. मतलब शबरी के मैं बैर खिलाऊं, साग विदुर का खाऊं. I mean, I was like, okay, it's like completely like from the beginning of the universe to till the end, ऐसा feel हो रहा था when I was going through it. Every day I listen to it and I feel like I'm somewhere connected to him, because when you are in a city, आप एक दिन सेंटर आते हो, आप रोज मेरे रूम में यहाँ बाबा का फोटो है, मैं बाबा को देखती हूँ, I take his name. But then when you get into the work also, you have to make sure that you take his name every time. And for me, or I would say मेरे age के बच्चों के लिए ना, it is a little difficult. So for all the parents who are here, I would really request you all कि like put this habit घर पे. हम लोग रोज समाधि चाहते हैं तो we take it for granted, but it's really really important. Because वो peace of mind जो है वो name बाबा का नाम सुन के ही मिलता है. That I've realized along the time, over the period of time. Then Meher Chalisa क्यों मुझे नहीं आती? I questioned it to myself, and I realized this is all the sanskaras. आपको सेंटर में आप पे संस्कार होते हैं कि आप आते हो सेंटर में, आप चप्पल उतारते हो, आप अंदर जाते हो, you are into a different aura. You are with Baba completely. You forget everything. Whatever happens during the center program, it's there. Okay, अब prayer होगा, अब announcement होगा, फिर ये होगा, फिर अभी जानिस दीदी आई. She's really good voice. I love the way you like. This song is really like close to my heart. So Janis didi, then I am speaking. Then later on we'll continue this program. So that schedule, every center has its own schedule. It's like बच्चे जब छोटे से बड़े होते हैं ना, when they come to center, they go through this. Oh, okay, अब ये उन्हें पता है, and they get along the schedule also. उस schedule में if you include few things like my wishes, हमारे center में my wishes included थे. I got to know कि अमरावती center में मेहर चालीसा पढ़ी जाती है. इसीलिए अमरावती सेंटर के जितने भी थे उन्हें सबको मेहर चालीसा आती थी. उन्हें माय विशेस के बारे में ज्यादा पता नहीं था.
So that thing I guess is very important कि हमारे सेंटर के जो स्केड्यूल है उसमें कुछ चीजें ऐसी ऐड ऑन हो जो हमारे साथ रहे एंड तक, क्योंकि वो बचपन से जो मैं सुनती आ रही हूँ माय विशेस। हाँ मुझे पता है कि बाबा क्या चाहते हैं मुझसे, बट मेहर चालीसा वाज नॉट दैट। तो आई टुक दिस कि अब मैं रोज मेहर चालीसा सुनूंगी। आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट अगेन टू ब्रिंग मी बैक टू बाबा's world. Then again about the savas. Sorry, Kushi, may I request you to recite the May Chalisa, please? I still haven't like मुझे learn नहीं है। मैं अभी भी उसको ऐसे आधे because few words आते हैं जो मुझे अभी भी समझ नहीं आते, but I love the composition. It's just so amazing. किताब लेके पढ़नी और बोलनी, बोल दे. Just recite it ना. Do it with your heart. Come on. Okay, I will try. अपार मेहर बाबा की जय. Anyone else who wants to join me? Chalni, don't waste time. Come on. Okay, चलो I'll see. अवतार मेहर बाबा की जय. हरि परमात्मा अल्लाहुर मस्त गॉड यजदान हूँ. जय मेहर साहिबे जमा, जय जय निराली शान हूँ. जय भक्त उनके मस्त उनके खींच लाते जो उन्हें भूलो कपर. धूल उनकी सिर लगाओ ये लाओ प्रेम के उनके सहारे मेहर को मैं पाई जाऊं. जय बाबा जय अंतर्यामी जय अनंत जय जगदाधार पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वामी अखिल विश्व के पालनहार. जय सौम्य मूर्ति जय शुभ पावन जय मंगलकारी भक्त जनन की आस एक जय जय अनंत लीलाधारी. युग के राही धर्म सिपाही जय तप के भंडार हरे. दरस मात्र से गति सुधरे उषार हो अधुपुंज खरे. निराकार साकार रूप जय नर नारायण दो. भीतर बाहर सर्ग पतारन तुम्हें छोड़ नहीं को. भक्तन के जय बाबा जान के मेहरबान. उपासनी के भंडारी जय है सरकुल पंकज भानु. सिद्ध जनन के शहनशाह जय दिव्य सनातन ज्योति. निर्विकार जय धर्म मूर्ति जय शांति अखंड विभूति. तुम सन प्रीति करे से प्राणी तुम समान हुई जाई. जन्म जन्म के पातक छूटे अंत मेहर पद पाई. व्याकुल मानो को हो तुम अब पार लगाने आए. देश जाति धर्म रंग का भेद मिटाने आए. जगती को दिखलाने शक्ति भक्ति की फैलाने महिमा. प्रकट हुए श्री माई से सत जीवन की लेकर गरिमा. मैं गाऊं क्या तुम्हारी महिमा शेष शारदा और न पाई. तुम हो अनंत महिमा अनंत अंत तुम्हीं में सब समाई. मर्यादा के राख नहीं तुम मर्यादा पुरुषोत्तम बना. होकर अनंत व्यापी दिगंत मर्यादा में बंद कर आए. तुम ही बने गिरधर. मीरा के सूरदास के श्याम. यस तुम ही बने नरसी. गिरधर मीरा के
सूरदास के श्याम, नरसिंह के थे सावलिया, तुम तुलसीदास के राम। केशव के तुम प्रियतम बाबा, ही में आन बिराजे हो। अमित कृपा दृष्टि सेवक से, मन मंदिर में राजे हो। तुम ही परस जन मन को पापी, आज निहाल भयो रे। तुम पद पंकज पाकर पावन, संताप भयो रे। चाहो नहीं जगत का जगत का वैभव, वैभव, रिद्धि सिद्धि नहीं चाहू। दुनिया दौलत माल खजाना, तुम ही पाई ठुकराऊ। चाहू सदा सलोनी मूरत, यही देख हर्षाऊ। इसको ध्याऊ उसको पाऊ, इस पर बलि बलि जाऊ। श्रवण सुने तो नाम तिहारो, रसना गुण तुम गावे। छोड़ जगत के मंदे बंदे बंदे मनुआ। मनुआ, एक तुम ही को ध्यावे। बसो मोर नैनन में ऐसे, तुम ही छोड़ नहीं और लगाई। सुरती एक रट मेरे नाम की, दूजो और नसाई। जब जब जन्म धरो धरनी में, सगुन रूप को पाऊं। सेवा भक्ति पूरी करके, निर्गुण माहि समाऊं। मैं चरणन को दास तिहारो, निश दिन यह मनाऊं। करो कृपा ऐसी ठाकुर जी, तुम सेवा को पाओ। जब जब धरनी माहि तुम आओ, अधम उदाहरण स्वामी। मोहि अधम को भूल न जाना, हो तुम्हार अनुगामी। तुम सेवा भक्ति दर्शन हित में, हूँ नर्तन पाओ। पाई प्रकाश तुम्हारो, प्रभु अर लीला एक जुड़ाओ। तुलसी की मैं पाऊ भक्ति, मीरा की वह मस्ती पाऊ। झूम झूम कर नाचू, सम्मुख प्रेम के आंसू बहाऊ। भूल जगत सुख तन मन हो, श्री चरण टेक हो जाओ। तुम ही साध्य आराध्य बनो, और कछु नहीं चाहो। सूरदास की पाऊ, रसना लीला तुम नित गाओ। निबल जान जो बाह छुड़ाओ, ये बांध रह जाओ। कबीर दास की मिले फकीरी, निस दिन अलख जगाओ। जत जतनक से ओढ़ चदरिया, तस की दस जस की तस धर जाओ। देह तो जो तो काज तिहारे, गति जटायु पाऊ। शांतिमयी तू गोद मिले, फिर धाम तिहारे जाऊ। शबरी के मैं बेर खिलाऊ, साग विदुर का लाऊ। खाओ प्रभु जी सी प्रेम से, वारी तुम पर जाओ। तरी अहिल्या गनिका सदना, तरयु अजामिल भागी। बाल्मीकि पार भेज, मरा मरा रट लागी। ऐसी भाग्य मिले मोह बाबा, एक ही वर चाहू। बिन निषाद चरणोदक पाओ, युग युग हेतु जुड़ाओ। द्रोड़ी का मैं मनु पहरुआ, निश दिन इष्ट लगाऊ। अंजनी सुत सम करू चाकरी, तुव दर्शन नित पाऊ। देव धनुज मानव ऋषि मुनि, सब द्वार तिहारे आवे। नारद मुनि नारद मुनि विनाशे पावन, नाम तिहारो गावे। तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु, शिव अनादि तू ही मैं जान। तू ही इंद्र बृहस्पति, तू ही त्रिभुवन नाथ, तुम ही को मान। जय सृष्टि के कर्ता धर्ता, जय प्रतिपालक त्रिभुवन के। दीन बंधु है दया सिंधु है, भक्त तुम्हारे तुम भक्तन के। जय प्रेम मूर्ति, जय शांति मूर्ति, जय दिव्य मूर्ति है बाबा। जय पतित पावन भक्त वत्स, जय शक्ति पुंज है बाबा। जय अधम उदाहरण विपद विदारण, तेज पुंज विनाशी। पावन मूर्ति पूर्ण मर्यादा, जय घट घट के वासी। ऐसी कृपा होई मुँह पर, विनय कोर कर जाऊ। मन मंदिर मन छोड़ न जाना, शरण पड़ाहू तोरी।
अटल रहे मम श्रद्धा भक्ति, अटल रहे प्रेम की ज्वाला, जरत 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 या में जर जाओ, बुझे नहीं यह पावन ज्वाला। जो ज्वाला प्रहलाद दीनी, बने संत सब कोई, गिरे से गिरेऊ अग्नि को, अग्नि में डाले अग्नि में डरेयू, साँच साच को आँच आँच न न होई। होई। ध्रुव समनिष्ठा अटल मिले, जिन साक्षी है ध्रुव तारा, अमर मिलन हो प्रियतम तुमसे, छूटे यह जग सारा। अमर मिलन हो प्रियतम तुमसे, छूटे यह जग सारा। अवतार मेहर बाबा की जय। I'm really happy है। I didn't know मुझे आती भी है वो, मतलब पूरी ऐसी आधी आधी अधूरी मतलब। How old are you, if I may ask? I am 22. Okay. This is what I feel like telling you, so मैं बोल देता हूँ Yes. कि when you recite this kind of a thing, Meher Chalisa is like Hanuman Chalisa, you know, the 40 verses of. तो उस समय ये जो तुम कभी हंसती थी, कभी यहाँ वहाँ देखती थी, वो सब छोड़ के इफ पॉसिबल, अगर चाहिए तो आंखें बंद करके bring Baba's picture or the image in your mind, and then with your full heart recite it as though you are placing it at his feet, उनके कदमों में रखती हो। ऐसे करके देखो और you will definitely feel the difference. Right. समझे? No, I seriously mean this. एक टाइम करके देखना। Yeah. जब भी तुम्हें दिल करे तभी, there is nothing, no hard and fast rule. Because ये भी अच्छा है, आप ऐसे भी रिसाइट करते हो, ये भी अच्छा है। No, I was looking and auntie also helped me, so I was a bit, क्योंकि words जो है ना वो still are like very critical for me to sometimes pronounce also and like to understand. So I was a bit conscious कि मैं कर पाऊँ, and I am very happy. I didn't know कि मुझे आते भी इतने सारे verses. जब भी कोई काम बाबा के लिए करना होवे ना, तो डोंट फील नर्वस, डोंट, जस्ट जंप इनटू इट। खत्म हो गई बात, जस्ट जंप इनटू इट। उनका नाम ले लिया बस, then he takes over. My own experience में हम लोग मेराबाद में प्रेस करने जाते हैं, मैं नेचुरली उसके पहले मैं खुद भी नर्वस थोड़ा सा रहता हूँ, बिकॉज आई एम वेरी बैड विद डायलॉग्स एंड ऑल दैट। तो वहाँ पे जो दरवाजा है बैक स्टेज का, वहाँ पे एलन ने एक बहुत अच्छी चीज चिपका के रखे, बाबा सेइंग अबाउट द पीपल हु आर डूइंग परफॉर्मिंग आर्ट्स। और उसमें उन्होंने बाबा ने बहुत अच्छी तरह से सब बयान किया है। एंड ही गोज ऑन टू से कि व्हेन यू कम ऑन द स्टेज एंड यू आर डूइंग थिंग्स, get into the character that you are doing. That is number one. And when you are engrossed in that character, think that he goes to the limit of saying, think that you are the best performer in the world. There is nothing wrong in thinking like that, because that will give you that inner confidence
and of course Baba will be helping us all the way. तो रास्ता बिल्कुल खुल जाता है, सरलते से सब काम हो जाते हैं. अर्चना ग्रोवर सेज भावना से रिसाइट करना खुशी एंड चालीसा विल क्या? Lisa हाँ जी, will sound magical. हाँ, ओके. Yes, thank you. So many people have like. अच्छा, कुंडा लॉफ्टे, आर यू देयर? कुंडा जी, जी कैन यू प्लीज टेल अस द बैकग्राउंड ऑफ दिस? ये केशव निगम जी ने कैसे बनाया था, ने क्या था, जरा एग्जैक्ट बैकग्राउंड बताइए सबके लिए. जी बाबा ने उनको बोला था फास्ट करने के लिए हफ्ते में एक दिन, और वो जिस दिन ऐसा फास्ट करते थे तो उनको अंदर से ये आता था, और इन्होंने ये 40 लिखा. और ये मेहरस्ताना में महोबा में जब बाबा गए थे, और जब बाबा ने डिक्लेयर किया था कि मैं अवतार हूँ, आई एम द अवतार ऑफ द एज, 9 फरवरी 1953 में, तब बाबा ने जितने वहां आधी रात को बाबा ने कहा था 12 बजे के थोड़ा पहले सबको कि हाथ मुंह धो के आ जाओ. और वहां जो कुटी बनी हुई है बाबा के लिए, जो कमरा बना हुआ है, वहां पे बाबा बाहर कुर्सी में बैठे थे, चारों तरफ बाबा के मंडली बैठे थे. और बाबा ने 12 बजे के पहले इन लोग को बोला था कि आप जाइए, हाथ मुंह धो के आ जाइए. और सब लोग आके बैठे. तब बाबा ने एक एक को पूछा था कि तुम मेरे को क्या समझता है, तू मेरे को क्या समझता है. किसी ने कहा मैं गॉड समझता हूँ, किसी ने कहा. तब जब केशव बाबू का नंबर आया, तब केशव बाबू जी ने इसको पहली बार बाबा के सामने गाया. और फिर बाबा इतने खुश हुए, इतने खुश हुए. और बाबा ने उनसे ये कहा कि इसमें तूने जो जो मांगा है मैंने तुझे दिया, मैंने तुझे दिया ये. और फिर बाबा ने कितनी बार ये सुना है, कितनी बार जब जब केशव नारायण जी निगम आए हैं वहां पे, तो कई बार बाबा ने उनसे कहा है कि तुम मेहर चालीसा गाओ. और इसमें जो जो भक्ति शबरी की, मीरा की, तुलसीदास और विदुर की, और जो भी कुछ है, वो जितना भी उनने मांगा है कि मेरे को तुम्हारी याद रहे, और तो बाबा ने उनको ये सब ग्रांटेड. बाद में उनका भी, उन्होंने भी शरीर उसी दिन छोड़ा, 9 फरवरी को, जिस समय बाबा ने मेहरस्ताना में डिक्लेयर किया था कि आई एम द अवतार ऑफ द एज. बाबा ने, कहते हैं, हाथ ऐसे ऊपर किया था और कहा था कि मैं अवतार हूँ. टिल दैट टाइम वी यूज्ड टू से सदगुरु श्री मेहर बाबा, सदगुरु मेहर बाबा. पर उस दिन से बिटवीन द 9th and 10th of the February night, midnight, बाबा डिक्लेयर्ड. और उस दिन रात को, पूरी रात, सुबह 4 बजे तक बाबा के भजन और कव्वाली और गायन का प्रोग्राम हुआ. और सुबह 4 बजे सब लोग डिस्पर्स हुए. ये थोड़ा सा उसके पहली बार जब बाबा ने सुना था, ये उसका इतिहास है. और एक ग्रुप है जो स्प्रेड लव मेहर बाबा, अभी खुशी कह रही थी कि उसको मतलब नहीं समझ में आता. उसमें ये प्रताप चंद निगम है, उन्होंने एवरीडे 4-4, 5-5 दोहा लेकर उसका अर्थ बहुत अच्छे से समझाया हुआ है. तो वो रोज 4-4, 5-5 दोहे आते थे, और वो उसकी पूरी एक माला है, उसका मीनिंग उसमें दिया हुआ है उन्होंने, कि केशव बाबू क्या चाहते थे और बाबा से उन्होंने किस तरह उसका ये दरखास्त की हुई है कि मुझे ये दिया जाए, मुझे वो दिया जाए. और वो बहुत लकी है, उनको भी वहीं पे रखा गया है, केशव बाबू को, मेहरस्ताना में, जहां बाबा की ये कुटी बनी हुई है. जय बाबा. And he went to Baba on the same day. Same day, 9th February.
एंड ही वाज समवेयर नियर बाय, तो उनको वहां लाके उनका क्रियाक्रम वहीं किया गया। और उसी अभी झोपड़ी के पीछे की तरफ उनकी समाधि बनी हुई है, केशव नारायण निगम की। कितना, हाउ फॉर्चुनेट द आत्मा। हमने बाबूजी को बहुत बार देखा है। लास्ट में उनको पैरालिसिस हो गया था, एंड उनका ये हाथ, ही वॉज नॉट इवन एबल टू ईट राइट एनीथिंग। उनका ये हाथ कंटिन्यूअसली ऐसे हिलता रहता था, जिसको वो दूसरे हाथ से पकड़ के रखते थे। और जब हम कहते थे तो कहते थे बाबा ने मुझे दिया हुआ है, ये बाबा ने मेरे को दिया हुआ है। और वे कभी ऐसे नहीं कहा कि बाबा ने मुझे क्यों दिया। जो भी दिया उन्होंने एक्सेप्टेड इट हैप्पीली, ये बाबा ने मुझे दिया है। ही हैड अ वेरी, पार्किंसोनिज्म हो गया था उनको। कंटिन्यूअसली ही यूज्ड टू अनेबल टू टॉक आल्सो। एट द लेटर स्टेज ही वाज इन अ वेरी बैड सिचुएशन। जय बाबा। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने दिया है उनको। क्या बोले आप लोगों को। चल खुशी, वापस आ जा मैदान में। तो थैंक यू सो मच आंटी हेल्पिंग आउट, क्योंकि मेरे आप अगर थोड़ा पुश नहीं करते और तो मैं आगे नहीं बढ़ पाती। हम लोग इसको बिल्कुल बचपन से गाते थे। हम लोग को ये आदत है कि जब हम लोग बाथरूम में जाते हैं नहाने और जब पूजा करते हैं तो हम लोग ये मेहर चालीसा जरूर बोलते हैं। फ्रॉम द एज ऑफ 5-6 years we started learning it. हाउ नाइस, हाउ नाइस। हाउ कूल इज दैट। मतलब मैंने तो अभी शुरू किया है, लाइक 1 महीने पहले। वो यू ट्राई करना, वो प्रताप चंद निगम का उसमें मिल जाएगा। हाँ उन्होंने वो एक ग्रुप में रोज आता था एंड इट वाज वेरी नाइस। आई यूज्ड टू लिसन इट very anxiously, the meaning. Yeah, because few things even we don't know. It gives you peace only. Like subah morning mein I listen it like at 5:36 while going to college. Gives you such a peace. It's like a start of the day. तो वो दिन की शुरुआत अगर वो चालीसा से हो रही है तो I feel very energetic throughout the day. तो very powerful words those are. आत्मा से निकला हुआ है ये सब, बाबूजी की आत्मा से निकला हुआ है, अंदर से। आई डिडंट नो कि बाबा ने उनको कहा है कि तूने इसमें जो जो बोला है मैं तुझे ये सब बख्श देता हूँ। आई एम गिफ्टिंग इट टू यू। बाबा ने ग्रांटेड शब्द यूज किया था कि तुमने जो जो मांगा है आई हैव ग्रांटेड यू। बाप रे बाप, हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। Okay. Sam, may I come in? अरे वाह जमशेद जी, प्लीज डू। Nigam, I had a good relationship with Nigam, and he used to call us Three Musketeers, myself, Cyrus, and Philly Engineer. Yes, he would always call us Three Musketeers, and he was one divine soul. I have not seen a parallel of him anywhere. So no doubt Baba said granted. One divine soul, absolutely. Yes. Yeah. And Meher Chalisa I must have heard more than 1,000 times. Okay. Bye. देखा खुशी, तूने आज कितनी ट्रेजर्स निकाले, which would not have happened if you were not to have started this Meher Chalisa today. This is what I mean when he takes over and conducts this program. Everything happens as per his wish. चलिए अभी गाड़ी आगे चलाओ बाबा।
Jimmy, do you Yes. want to say anything else? Jimmy? No, Sam, go ahead, go ahead. Okay. All right. So again, listening Baba's name, unke Chalisa. Also, I haven't calculated reading books these days, but I've started with reading my own grandfather's book, which is really like a new book that has come up, Universal Work of Meher Baba. It was so before my grandfather passed away, he wrote like 3 to 4 books. एंड वो ऑन द वे ऑफ पब्लिशिंग है, तो अभी 2 बुक्स और आने वाले हैं. वी आर वर्किंग ऑन इट बिकॉज आधी चीजें हमें समझ नहीं आती है. वो दैट लेवल वी आर नॉट एट दैट लेवल कि हम लोग उनकी राइटिंग समझ पाए या बाबा ने जो भी बोला था वो समझ पाए और उसको एक ड्राफ्ट में डाल पाए. एंड बट या वी मीन्स माई डैड एंड मी सक्सेसफुली bought this book out, and I really want to tell few things about this book is because Baba is known as Kaliyugi Avatar, right? कल की अवतार. तो जब पुराने जमाने से बोलते हैं ना घोर कलयुग, it's the misuse of energies or whatever they had. वो जब मिसयूज होता था तो बोलते थे घोर कलयुग आता. अन्ना ने मुझे हमेशा बोला कि why we are into this age, because हमारे हाथ में अब पावर्स आ गई है. छोटे से डिवाइस में हमारे पास पावर आ गई. उस वक्त ऐसा होता था they used to have that divine connectivity to see people across, मतलब इधर से उधर देखने के लिए. अब हम एक फोन में देख लेते हैं. सबके पास वो पावर आ गए. That is Kaliyug, where you all have the same thing. There is no ऊपर नीचे. You all have same thing and you are misusing it. So somewhere around मुझे जो भी समझ आया, I'm telling you all. This book consists about few incidents and stories. This book is in English. बाबा ने कैसे काम किया यूनिवर्सली. चंबल वैली डेकॉइट्स, अगर किसी को पता है, चंबल वैली में जो गुंडे डाकू थे उनके ऊपर उनके लिए बाबा ने क्या काम किया, वो यूनिवर्सल, उसके बारे में अन्ना ने लिखा हुआ है. इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में लिखा है. देन विमेन्स लिबरेशन, मतलब बाबा ने जितना भी यूनिवर्सल वर्क किया अराउंड पीपल फॉर दिस वर्ल्ड, वो सब इस बुक में कवर हुआ है. सूफी रीओरिएंटेशन जो था वो एक बहुत बड़ा मतलब चेंज था फॉर सूफिज्म, उसके बारे में लिखा गया है. वर्क विथ अनटचेबल्स, उसके बारे में लिखा गया है. एंड व्हेन आई रीड दिस आई फील लाइक his work was beyond our imagination. वो बस हमारे साथ रहते थे, हमें दर्शन देते थे, ऐसा नहीं था. He worked like seclusion में जाके he used to work from his place wherever, like अगर he's in the cave, he's used to work from there also. So बहुत सारे significant moments इस book में दिए गए हैं. So I'm reading through it. The most important part I feel is like again कि now I'm homesick. मैं 2 महीने से मेहराबाद नहीं गई हूँ and I really want to go home. So my mom and dad are like, why are you not carrying him with you? ये हमेशा से मेरा problem रहा है. I don't carry him with me. So I said, no, I have his छोटू सा booklet with me. I have his photo in my purse. I have his photo over here. Then why am I getting distracted? Like why he's not everywhere with me? तो इसीलिए I've started keep bringing on few things into me कि मतलब नहीं, मैं रोज ये चीजें करूंगी so that I am always there. वो तो होना नहीं चाहिए obviously because these are all outer things that are bringing me close to him. So आज के बारे में I want to tell one incident. इस बार Alan was not there. तो इस बार का जो खाना था वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आया because Alan was not there to curate the menu. He was in US. तो अब ऐसा है कि सवास में काम तो बहुत होता है, हमें बहुत सुबह उठाया जाता है, समाधि भेजा जाता है, then we come back, we work and like we have different things to do throughout the day.
तो हमें खाना इतना खाते हैं हम लोग जितना हम रोज नहीं खाते। वहां जाके जो आई हैड लाइक 3 चपाती, इतनी बड़ी है वहां की चपाती सर, बड़ी बड़ी 3 बड़ी रोटी खाती थी मैं। और तब भी ऐसा लगता था कि अरे खत्म, मतलब आधे घंटे में आई यूज्ड टू फील लाइक हंग्री अगेन। तो बट इस बार इस बार एलन नहीं था, तो कुछ ऐसी सब्जियां बन रही थी जो पसंद नहीं थी हम बच्चों को। बट जिस दिन स्वप्निल भैया थे, ही वाज अगेन he is from अमरावती सेंटर। स्वप्निल भैया ना आते वक्त सबको निकालते थे समाधि से कि चलो 8 बज गए, चलो लेट्स गेट बैक टू एमपीआर। इस बार सवास एमपीआर में था ड्यूरिंग समर, बिफोर द एमपीआर स्टार्टेड। तो हम लोग लास्ट में आते थे, मैं स्वप्निल भैया एंड फ्यू अदर सवासीज। तो मैं स्वप्निल भैया को एक दिन बोला, आज ना मुझे वो सब्जी अजीब सी खानी नहीं है, मुझे आज पता नहीं, आई एम क्रेविंग फॉर भिंडी। तो इसे देखो बाबा को अच्छे से बोलोगे ना मिल जाएगी। वी वेंट टू द किचन एंड इट वाज रियली भिंडी। एंड देन आई वाज लाइक ओके, इज दिस अ कोइंसिडेंस? तो आई इग्नोर्ड इट। आई वाज वेरी हैप्पी। आई सेड देखो आज भिंडी मिली है, मैंने भिंडी की बात की। आई टेल यू 3-4 बार थ्रू आउट द सवास इज फॉर 7 days, उसमें से 4 दिन भिंडी बनी थी। And that is because every day whenever I used to say कि आज मुझे कुछ अच्छा खाना है, भिंडी बनती थी। मुझे नहीं पता, मैंने भिंडी वो सस्ती और I was asking बाबा वेरी अच्छे से, इसलिए हो रहा था। You know something? Bhindi was one of Baba's favorite vegetables. Yes, yes. उन्होंने इसके बारे में कहा है कि इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, कमर के लिए बहुत अच्छा है, ये है वो है, बहुत सारा उन्होंने इसके बारे में बोला है। हाँ, एंड द सब्जी और द वेजिटेबल दैट ही डिड नॉट लाइक सो मच वाज बैंगन। हाँ। बैंगन उनको इतना ज्यादा पसंद नहीं था, बट भिंडी उनको बैंगन के लिए बाबा ने बोला है कि इट्स लिटिल पॉइजनस फॉर योर ब्लड, वो आपके ब्लड को बट वी इंडियंस हैव सच एन हैबिट ना, हम बचपन से बैंगन 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 इतना खा के, इट्स इन आवर ब्लड कि हमारे एंसेस्टर भी इतना बैंगन खा चुके कि हमें अभी फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो कोई फॉरेनर खा गया ना, उसको रैशेस हो जाते हैं। हाँ, आई हैव सीन पीपल दे हैव एलर्जीज, रैशेस हो जाते हैं उन्हें बिकॉज, बट एनीवेज। तो अबाउट भिंडी so that savas, I will really call it like a bhindi savas because I got to eat so much of bhindi during the savas. Baba's grace, I love him for his food actually makes me happy. and mama, my mama makes the best poha I feel. And that day Sunday nahi tha us din, Sunday morning I think MPR mein poha milta hai, but that was Friday or something, and my mom said I've made poha and I was not there, I was in Savas, and I was like, you made poha and you didn't get to be at Samadhi. So my friends were like, what is this, तुम्हारा घर यहाँ आसपास है तो तुम क्या टिफिन सर्विस मंगाओगे, जो यहाँ बन रहा है वही खाना पड़ेगा, and all of that, all other Savasis. I was like, okay, आज मैं पोहा नहीं खाऊंगी, जो भी बना है वो खाऊंगी. I went, it was Thursday and there was poha in the breakfast. This happened like the 5th time now, and I was like, okay, is he listening to me like for real? So he took care of me as a mother because I was really looking for something at the Savas. What I was looking is just some stability into my life, because abhi so many things have happened. Ek saal mein I was working, I was not working, I was doing plays, and I was also looking for the colleges. So I really wanted to get into this particular college, into particular subject. और मैंने तभी CET दिया था for the MBA entrance, and I was very worried about it because of my health. I was not able to give a proper examination. When I came to Savas, I was just asking Baba ki please help me out, get me out of it. I really want to pursue something in my life, this course. And throughout the time I met so many good people. This time I met
Piren also, is he? I don't know. Piren. So Mehta uncle's son, he sings. Yeah. Yeah, so he is such an amazing person. हमने Victory Unto Thee recite किया साथ में, which I wanted to do since a long time. और उसकी भी एक स्टोरी है कि मैंने वो मेरे दिमाग में बहुत पहले से था और मैंने मेहर काले भैया को बोला था on the very second day कि वर्कशॉप में, कि मैं उनके वर्कशॉप में थी, and I said I really want to recite, and he said, you know what, let me show you. He showed me the list and सबसे पहले Victory Unto Thee था उसमें, which is the one of the most lengthiest song. And जब टेड ने सुना कि Victory Unto Thee ये गाना लिस्ट पे है, he was like, it's very lengthy, how you guys will be able to do, like हमें time नहीं हमारे पास and all, but we still did it. On the last day, Meher Bhaiya called me or him a t-shirt में, and he said just sing along with me. And मैंने और उन्होंने बाकी सबने ऐसा गाया है, I still listen to it, and I feel like that was one of the best presentation for Baba from my side. I mean, I sang it with all my energy and my happiness and everything. So I know he's there. I know he's taking care of me. But I always want to say him कि I don't want to leave your daman. I want to hold it from the bottom of my heart, and I want him to help me to actually hold him like nothing. Like I want if I could meet him, na, I really want to. I want to hear his voice. पता है मेरा bucket list में है कि मुझे बाबा की voice सुननी है. I keep asking people कि है क्या कहीं recording, but I still haven't found anything. मैंने जेसिका से भी पूछा. इस बार हमें सवास में well जो है लोअर मेहराबाद में well है, बाबास में well है, उसका पानी दिया गया. Was filtered by her, boiled by her, and हमें छोटे छोटे पैक्स में वो पानी दिया गया. उस पानी का सिग्निफिकेंस ये है कि बाबा के पैर धोए गए थे, and padri uncle was been told to put that धोए हुए चरणों का पानी into that well, and he said that is my prasad, the water of that well is my prasad. And again जब बाबा when Baba left his physical body, उनके आसपास जो आइस रखे गए थे बड़े बड़े ब्लॉक्स, वो जब बाबा को 7th day पे we were covering them, तो वो आइस जो था वो निकाल के पादरी अंकल ने और बाकी 2-3 मैन मंडली ने लाके उस वेल में डाल दिया था. So that water we all got this time during the Savas, and we felt so blessed कि वो स्पेशली हमारे लिए जेसिका ने उसे निकाला, बॉईल किया, फिल्टर किया, पी के देखा, बच्चों को पिलाया उसके इंडियाना वगैरह कि देखे कि पेट तो खराब नहीं होता है. एंड ऑल देम वर लाइक भर के हमारे लिए लेकर आए, एंड वी वर लाइक वो वन ऑफ द बेस्ट प्रसाद था, वन ऑफ द बेस्ट. आई कांट कंपेयर इट. मैंने वो लिया और मैंने खुद के घर के वेल में डाल दिया ताकि मेरे घर का पानी पूरा प्रसाद हो जाए. So I did that. But yeah, the Savas of this year was again like can't describe into words. Rakhi Di and Ganesh Bhaiya worked very hard for it. इस बार साइरस अंकल ने भी हमारे साथ बहुत सारी चीजें बातें शेयर की. निगम अंकल भी थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे टॉक्स दिए हमें. ऑल्सो हमें पुराना एक चार्ट मिला गॉड स्पिक्स का. गॉड स्पिक्स के चार्ट्स मिले हमें. मेहरनाथ अंकल के मतलब भाऊजी के कैबिन में थे वो, एकदम पुराने, इतने ओल्ड थे वो कि पाइप उन्हें कट करके उसमें रोल करके लाने पड़े क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डेलिकेट थे. तो वो एकदम एंशियंट हैंडमेड चार्ट्स जो है इस बार हमें गॉड स्पिक्स के मिले. So all of these things, when I bought it at home, I felt like I bought a treasure.
okay, well का पानी, इतना चाट, बाबा का फोटो, ये वो, and so many memories with Baba. But yeah, when you go to Meherabad, you feel like that's home. That is where we belong. Um, so thank you so much again to Janice Didi and Auntie, and again you for giving me this opportunity to actually speak out about him and me, my connection with him. It's really, she was trying to get me here since a long time, और मुझे पता नहीं time ही नहीं मिल रहा था. But I was like, नहीं, let's do it. I want to share a few things. So thanks. You mentioned about you wanting to hear Baba's voice. Yes? Yes. Yes? Yes, yes, yes. Yes? Okay. श्रीधर केलकर को जानते हैं आप? हाँ. He's Okay. my neighbor only, kind of. अरे वाह, सच्ची? वहां पे? Kind of a neighbor, हाँ, मतलब. Okay. उन्होंने एक टाइम बताया था कि his mother-in-law was very close to Baba. And एक दिन उन्होंने ऐसे ही बातों बातों में बाबा से पूछा कि बाबा जब तक आप शरीर में है, we come to you for the smallest of our problems and you help us out and give us solutions वगैरह वगैरह. What will happen once you go away? And that is the time Baba told her कि जब भी तुम ऐसे दुविधा में आ जाओ, whenever you have this dilemma about क्या करना चाहिए, put your hand on your heart and the first answer that you get will be my voice telling you this. ये मुझे बहुत ही डीपली भेजे में घुस गया है. You see? Mani auntie used to say कि yes, Baba does not talk, but he was never silent. You see, वो उनका स्वभाव इतना रेस्टलेस, इतना मिस्चीवस, इतना ये था कि देयर वाज नो ऐसे वो मुंह लटका के भगवान है और ऐसा है न वैसा है न. देयर वाज नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट. इनफैक्ट अगर कोई एकदम सीरियसली उनके सामने बैठता तो ही वुड पुल हिम अप एंड से क्या भाई तू इधर कुछ फ्यूनरल में आ रहा है, कम एंड एंजॉय योरसेल्फ, डोंट लुक सो सैड काइंड ऑफ थिंग, यू नो. तो बाबा की आवाज जो सुननी है, he will talk to you in his own sweet way. Just have that longing for it, and like Baba granted Nigamji his wishes, perhaps your wish will be granted and he will talk to you from within. Bilkul. It's as simple as that. During the workshop, we had Karen, who told us about the thing that we had. उसमें एक ये था, you used the word longing, right? She said longing for longingness. You should have longing for longingness. And I was like, yes, that is so true. We are all like so hungry for him. We like that longing for longingness. And then, like you said, listen him through your heart. Like you put your hand on your heart and you actually ask him whatever question you have. I think, yeah, that would really work. I'll try this. I'll definitely try this. But remember one thing, हाँ, एक चीज याद रखना
कि the first answer is his answer. फिर तुम बोले चलो अभी नहीं, सेकेंड टाइम भी ट्राई करो, ऐसा करो कि ऐसा करो, तो then it will dilute the whole thing. Remember that also. You know, a lot of people amongst us, we toss a coin कि अगर हेड्स आया तो बाबा की मर्जी के मुताबिक होगा, ये ही वुड लाइक इट. अच्छी साला हेड नहीं आता है तो बोलेगा चलो कहीं नहीं, अभी आई विल ट्राई एंड डू इट ट्वाइस, देखता हूं क्या होता है. फिर भी नहीं आया तो बोलेगा आई विल टेक द बेस्ट ऑफ द 3. ऐसे करके तो वो मजाक बन जाती है. दीना तो दीना टलाटी दीना हाँ. टलाटी Dina Talati, Sridhar's mother-in-law name was Dina Talati, correct. Kundaji, you are a great help, huh? Honestly. Okay, anybody wants to ask anything? Or should we let this young lady go away today? कुछ तो पूछो कुछ. Okay. Today, there are 12 participants right now here. I would like an answer from each and every one in just one sentence. In just one sentence. The question is, बहुत ध्यान से सुनिए. Suppose right at this moment here, Baba appears beside you. How would you react? Starting with Khushi. Come on, tell me. Patafat, patafat. I don't know. It's just सुन के ही ऐसा लग रहा है that I don't know, but like I think I would definitely just look at him. He's just amazing. मुझे पता है when I'll see him, I'll either cry or just will be filled with happiness, joy. Right now I don't have any words because मुझे वो सोच के ही I'm just feeling very, yeah, wow. It's like a wow moment for me. I'll definitely, I think I will cry or I'll just have a big smile on my face. And Okay. wow. Kundaji, how would you react? चले जल्दी. कुंदा ना पे, हाँ. बाबा को एम्ब्रेस करेंगे. शाबाश. Very good. Archana, go over. I'd open my heart and just drink into the nectar of his love. And I probably would be speechless. And then when you're drunk, nice and high, तो क्या करेंगे? I don't know whether I'll be conscious or not. The feeling would be so overwhelming, really. कभी तो ये इमेजिन करके देखिए. Honestly, ये जैनिस ने वहां कहीं रास्ते में होगी, वहां से बोला me too will run and hug Baba. So Khushi, you are not the only one. Okay, Cherry, what will you do? Cherry? Yes, uncle. I am still thinking whether I'll be in my senses or not. I might become numb and statue. I don't know. And even now, if I'm feeling that maybe I'll be howling and crying and just don't know what to do. Maybe I'll fall on his feet. Lot of maybes there. Don't know at that moment what it would be. Okay. Parent Jasumani. Parent Jasumani. Yes.
I would just run to him like mad as fast as I can run and give him a very tight embrace and just stay in that embrace forever and ever. That's all. Jai Feel Baba. his love within me forever. Jai Mer Baba. Thank you. Namaz Damania. Jai Baba, Haji. hug him tightly. Hug him tightly. Okay. Rita ji. Rita ji. Rita Kohli. बोलिए. She's probably not there. Ram Nori. Yes, sir, I'm here. Bolo. I decided this long time ago what I wanted. First I'm going to tell him, I'm so happy to see him bow down and then slowly ask. I will certainly ask for him if he would at least give me, mukti, moksha, ordinary mukti, at least, Mm-hmm. if he'll Okay. grant me that. Right. Hey, hello, Jai Baba. Now you can hear me? Can you hear me? Yes, Rita ji, go ahead. I'll go down to Baba and tell him to bless my family, especially my son, which I need very badly. Sorry, can you repeat? Bless my son and my family. हाँ, तो क्या करना है? Yeah. बाबा Bless my family, especially my son. Bless my son. हाँ हाँ. Hey Baba. Sam, जी. so the idea for me, this came, Mani auntie once told, Dr. Grant, Food corner. who was Meher Baba's physician. Hmm. So, Baba, told him, hey, you can ask me for anything. I'll grant you anything you want. Hmm. So he actually asked Baba, I want to build the best, hospitals in Pune. Hmm. Ruby Hall clinics are supposed to be very nice, very good hospitals. So अच्छा. Mani auntie said, man, this guy asked for hospitals. I would have asked for God realization. Hmm. So, and she told us he missed his opportunity. Hmm. And that stuck in my, mind. Hmm. See, a lot of times when God comes to you and asks, probably you're numb, you don't even know what to ask. You'll probably end up blabbering, so. Hmm. This reminds me, I'll try and make it brief because we are exceeding our time. Sorry, Sorry, Sam, may I please ask you what you would do? that's what I was going to do, but Oh. before Thank you. Jimmy Khan is around. Jimmy? Yeah, I'm Are you here. there? I'm here. Yes. Bolo. Well, I would tell Baba that in 1961 you gave me a hug, and it's been a very long time. Can I give you once more, or can you give me once more? That's what I would tell him. Shabash. Well, in very briefly, I would just fall at his feet and tell him, "Ke Baba, do whatever you want to do with this idiot. I have nothing to ask from you. आपको जो करना है वो कीजिए. तोड़ मरोड़ के whatever you want to do exactly what you like." This reminds me of a beautiful vision that I had at the center many years ago, probably 20 years back or something. It was a Sunday session, and
program was coming to an end और वो धुन चल रही थी. Now this धुन always gets me somehow or the other. वो एक अंदर से एकदम churning हो जाता है. तो I get this vision कि ये जो हमारे सेंटर की बाबा की फ्रेम है, तो इट वॉज क्वाइट ड्रामेटिक. वो टीवी में कैसे देखते हैं ना, ईश्वर प्रकट होता है, तो वैसे वो कांच तोड़ के धड़ाम करके बाबा appears and he wants to step down, and naturally Erach is next to him, so Erach gives him a hand and बाबा सेंटर के वहीं पे खड़े हैं. And then Baba tells Erach, so Erach announces कि Baba is very pleased with all you Bombayites. Please, he wants to give you all a darshan. Come and have his darshan. So everybody is rushing towards him. So Erach had to again come on and say, okay, please form a queue and come and take his darshan one by one, one by one. Now, Erach had a kind of a jolla, a sling bag kind of a thing. और उसमें कुछ स्वीट मीट पेंडा के क्या कुछ प्रसाद के थे, तो he would keep passing it on to Baba, and Baba would give each one prasad, and people would walk on. I, for one, didn't have guts to go up to him. So, although I was standing in the queue, whosoever wanted to go ahead of me, सबको घुसाता था. I still remember there was a lady called Seira Mai. वो बेचारी एकदम she's rather old but very nice lady. So she said, "Mare mane jaldi jawano che this that." So I said, "Yeah, please go ahead, go ahead." I say, karke, I was the last one. When I reached there, Baba looked at me and he said, "Why have you come last?" Then he tells Erach कि वो थैली दिखा. तो Erach empties out the bag and he says, "अभी सब प्रसाद खत्म हो गए, अभी तो you come." I said, "Baba, it doesn't matter." करके मैं आगे जा रहा था, तो he pulls me and he gives me a great big hug and he says, "Today you are the fortunate one to have received this." सब लोग प्रसाद लेके चले गए, but you got this. I'll never forget this vision of Baba. So मैं ये मेरा खुद का अनुभव है कि oftentimes I have felt his presence around me in the most natural way. अभी मुझे बोलते हुए शर्म आती है, but sometimes when I'm smoking, कैसे दूर खड़े रह के अपने दिमाग में कुछ न कुछ चलते रहता है, और when I'm having a smoke, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे कंधे पे हाथ रख के he's standing right behind me. फिर मुझे खराब भी लगता है तो I try to stub out the cigarette or whatever, but वैसे हमारी ये जो लेन देन की जोड़ी जो चल रही है वो चलती रहती है. So this is what Meher Baba is all about. उनसे एक चीज मांगो तो वो 1000 देंगे, 1000 मांगो तो करोड़ों दे देंगे. उनके पास कोई चीज की कमी नहीं है. It all depends on your capacity. तुम्हें मांगने भी आना चाहिए, और वो जो दे वो डाइजेस्ट करने की भी तुम्हारे में ताकत होनी चाहिए. Anyway, we can go on talking like this till kingdom come, and
That's not the right way to do things. So अभी हम prayers and आरती करेंगे. अर्चना जी, अर्चना Yes, ग्रोवर, sir. Yes, sir. पहले आरती करें. Okay. Just hold on. We'll set this up and अवतार मेहर बाबा की जय. अर्चना जी, Want me to do it, sir? अर्चना जी, You want me to do Aarti, sir? Or the prayer? Jai Baba Sam. Sam, you want me to do the Aarti or the prayers first? Sam? do the आरती अर्चना जी. Okay, okay. अवतार मेहर बाबा की जय. बुझावे नारे जहिलतनी एकर कुद रत्ने फरमातु छलागी आश भक्तों ने के पाक्षे नूरे मातु अया मोर शद में चरण पर तुझ धरिए सर खुदाना जात थी वाके पथई बे तो मेहरबान तुझे माँ लेखन की कतनो तू आशिक भी ने हारे पभी तुझे दरी याई वहीदत मारे पतनो होई तूफान तू हमोरा है रावने बाच जे ज्ञान सदानु ये तू पर मात्मा ज्ञानी छेने मो तारे फातू खुदा ना प्रेम नो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके साकिया दे पयमा तू हमारी नाव दरी
तो हमें तरिए हमारा ना खुदा मेहर पापा छेनी के पातू बुझावे नारी सैलतनी कर कुद राते परमातु छलागी आश भातो ने के पक्षे नूरे तू। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। Beloved अवतार मेहर बाबा की जय। लहर से ही है जिसकी सृष्टि उसके देने अनंतता का कैसे हो आदि सचेतन शांति निकेतन आदि सचेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्मा मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ प्रेम दीप में ये जलाओ प्रेम दीप में ये जलाओ निविद अंधेरा मिटता पाओ निविद अंधेरा मिटता पाओ अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाओ अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाओ तुझको सरसाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ जीवन की हर सांस हमारी जीवन की हर सांस हमारी बन जाए गबू गति तुम्हारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी हे करुणा कर लीलाधारी हे करुणा कर लीलाधारी तुम करुणा बरसाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ बने आरती जीवन मेरा बने आरती जीवन मेरा आदि अंत काल हो गेरा आदि अंत काल हो गेरा खोले नयन और दिखे सवेरा खोले नयन और दिखे सवेरा तुम मुझ में छा
प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्माओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। तार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और कोई रूप नहीं है। तुम अविभव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे भी हो। तुम तीनों भवनों में हो और तीनों भवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सदैव परिकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपूर्ण एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम पर ब्रह्मा हो और परात्परी पर ब्रह्मा भी हो। तुम पर ब्रह्मा परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो और मस्त हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम यजद अर्थात एकमात्र पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभु राज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। इसका कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी निंदा, आखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं, और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे ये किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है,
उसको भी क्षमा कीजिए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। आमीन। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक प्रेम करें, और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। बोलिए अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। There'll be a minute silence. Beloved Avatar Meher Baba ki Jai. Thank you, everybody. Thank you, Baba. Until we meet again next time, keep Baba with you. Jai Meher Baba.